ଧର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେସ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବି ଯେ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣୁ, ବହୁତ ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ 1 ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ 2 ମାସ ଧରି ଆମକୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ବହୁତ ପିଲା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟେ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଦେଖିକି ଏ ରାୟଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପର୍ଟିକୁଲାର ମାର୍କ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣିସାରିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କର ବାହାରି ସାରିଥିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ସେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳକୁ ଗଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ ଯାଇ କେସ୍ କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାର୍କ ଜାଣିଥିଲି, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖାଲି ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟା ଯଦି କାଲି କଟୁଛି ବା କେସ୍ କରିବ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟା କହିବି ଯେ 100% କଟିଯିବ। କାହିଁ କଟିବ ନା, ସେ ଯଦି ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଯାଏଁ ରହିଛି, ଏଇ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯଦି ଯାଇକି କେସ୍ କରୁଛି ବା ସେ ଯାଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୋର ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଉ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ ଧରାଯିବ। କାରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପିଲା ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ପାଇଯିବେ ଆଉ ଅଧିକା ପିଲା କଟିଯିବେ। ଆରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ବାହାରିଛି, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି କିଛି ବି ଗୋଟେ ବି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଟୋଟାଲ ନାକଚ କରା ହେଇଯାଉଛି। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଯିବେ, ମେରିଟିୟସ୍ ପିଲା ଯିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ କୋର୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜି କହିବି 20, 25, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଥିବ ନା କିଛି ନ ଦେଖିକି ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ରାୟଟାକୁ। ଆରେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ସେଇଟା ବୁଝାଉଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଦର୍ଶଉନି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସମାନ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଦେଖିକି ପୂର୍ବରୁ ଓସେବା 2016 ମସିହା ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ପିଲା 2018 ଯାଏଁ ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଇନଥିଲା, ଓସେବାର ଜୟ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସେଇ ସମାନ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କଳା ହେଇପାରୁଛି, ଆଜି 2023 ମସିହାରେ କେମିତି ଧଳା ହେଇଯିବ? ବା ହେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁଛି ସମାନ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଥାଇକି, ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ବଦଳିଯିବ? ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ କାରଣ ପିଲାମାନେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ନାକଚ କରାହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର, ଯଦି ସେ ଯାହା ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଥାଉ, ଯଦି 220 ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ କଟା ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁ ସେ ପିଲାଟା ଯଦି 220 ରଖିଛି, ସିଏ ତା'ର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 180 ରଖିଦେଲୁ, ଆମେ ପଳେଇଲୁ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଭଲ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା କେହି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି, କି ଷ୍ଟେଟ୍ ମେରିଟ୍ ରାଙ୍କରେ ଗଲେ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନ। ଯଦି ସେ ପିଲାଟା 220 ରଖି ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇ ଡେଟ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କଟିପାରୁଛି, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାଟା ସେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଚାକିରି? ସେଇ ପିଲାଟା ବି ରଖିଛି 200+ ମାର୍କ ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍
लिस्ट जोड़ा भी बाहर थिला मु मना करूनी कौन सी भूल कारण से जिनसर कमी थिबा जोगु ताकू पूरण करने पे आउ थे नुआ लिस्ट बाहर करने निर्देश दिखाई जो पिला भावुं जे कोर्ट जो रायटा देते भूल प्रकृत में भूल आपणकर से जिलार को पर्टिकुलर से जो गाइडलाइन टाक आप बुझे माने भूल कर कहबी से भूल करने जो आज पस्तौं स्टेट हिसाब से जो अन्य जिले में पाई से जिला आप भय करें काली कटिजु कटे निश्चित 5000 पिला प्लस कटे यहाँ कि कहबी जे दी मत आदौ ना 5000 प्लस पिला कटे कहीं ना जो पर्टिकुलर जिलू कहबी 10टा जिलूर सब हाएस्ट कैंडिडेट पाई से जो 10टा जिलूर पाखापाखि 500-600 ये कैंडिडेट बड़का रहा जो 5000 पाखापाखि कैंडिडेट हो तेणु 5000 कैंडिडेट जो बड़का रोज कटुच्च आउ जो नुआ जो जिला को से जो जिलार पोस्ट नहीं जाते से पिला कौन करेंगे ना से जिला को बाद दिया से जिला को बाद दिया नुआ जिलार पिला को जो प्रिफरेन्स 1 हिसाब से जो पिला को बाछी से पिला से जिले भर्ती हे तेणु गोटे पिला जदि 200 प्लस मार्क रखी थाए तार कौन भी गोटे भी रूल भायोलेसन होता है ताकू मेरिट लिस्ट रू बाद दिया से पिलाटा 200 प्लस रखी आप 160-170 रखी कौन कहते आम मेरिटियस पिला तार जस्ट यहाँ भूल सर्टिफिकेट तार इश्यू हो नाला सर्टिफिकेट इश्यू पर्टिकुलर जो डेट जाए थिला जे पूर्व आपंकर सर्टिफिकेट कम्प्लीटेसन होता दरकार से तार है गोटा भूल तार तो कहीं भूल नुह परीक्षा प्रोसेस जब भी नोटिफिकेशन बाहरला से तार सर्टिफिकेट कम्प्लीट हो नाला सर्टिफिकेट आसी ना जे पर्टिकुलर जदि गोटे पिला को 200 मार्क रखी था पिला को नाकच कर गाइडलाइन जो ताहले स्टेट सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करके 200 मार्क पिलाटा को नाकच कले कौन असुविधा अच्छी असुविधा हम ना तार जब ए 7 वर्ष थर रिक्रुटमेंट बाहर आउ थे 7 वर्ष जाए न बाहरला तार तो पुणी असुविधा हम ना तेणु सी भाव कौन 7 वर्ष जाए सी भी हैरान हम किंतु ताकू रिजेक्ट करार मुख्य कारण कौन ना रिजोल्यूशन ये जिनसा मेंशन अच्छी जे आपणकर यही डेट पूर्व सर्टिफिकेट सबकि क्लीयर होता दरकार तेबे जाइए आप चाकरी करने इलिजिबल आउ कि ना आउ गोटे कह रेसिडेंट कैंडिडेट केस करेंगे है यहाँ भी पिला बहुत पिला कमेंट कर रेसिडेंट कैंडिडेट आम ये जिला को आम पकईचु और से जिलार पर्टिकुलर बहुत पोस्ट बाहर था तेणु से यही जिला को पर्टिकुलर जो अन्य पिलाने द्वारा भर्ती होती अलग जिलार पिलाने से मैंने निश्चय केस करेंगे कारण पर्टिकुलर सेमती जिले में जब कंपिटिशन हम ताले जब 50 जाऊला कटकटा ताले 20 जीव माने कह पाखापाखि बहुत कमिज 50% रू एभव कमिज से निश्चय जी केस करने कि यही जिनसा गाइडलाइन कौन जगह मेंशन नहीं जदि केस करार प्रथम जिते बड़े रिक्रुटमेंट प्रोसेस बाहरला से समय आप ये जिनसा करते आम जिला को केवल आम पकड़ापी हकदार से गोटे रिजोल्यूशन एमती बाहर कर पूरा कथा प्योर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन केवल से जिलार पिला ही से जिला को पकड़े तेणु केवल यहाँ गोटे जिनस कहबी स्टेट पिला जो मैंने रिजोल्यूशन जो जदि कौन भी पिला कटुच्च ताहले रिजोल्यूशन से जिनसा मेंशन थिले ही कटिबे आउ आपण आज कोर्ट ही केस करिया गले मु कहबी जे 100% कारण मु राय आसला मार्च 12 तारिख रे किंतु मु वीडियो को पाखापाखि कलेनी जनवरी 31 तारिख रु मोर प्रथम वीडियो मु पोस्ट करथिले जनवरी 31 तारिख रु सेते बेले तुम कहि आसु जे एटा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कारण 2016 रिजोल्यूशन जहा अछि 2023 रिजोल्यूशन से अछि तेणु से क्षेत्र में केमी गोटे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन केमी हो मु केमी जानली मु तो भगवान को फोन करी पचारनी ना जे एटा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन स्टेट सिलेक्शन हम आगू मु देखुची जे रिजोल्यूशन रे एई जिनसडा 2016 रे मेंशन अछि एई लाइन आगा 2023 रे मेंशन अछि तेणु डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हम निश्चित आ से रायटा मधा आसिला जीवन में आप जिते अप्लाई कर रिजोल्यूशन टाक ठीक भाव पढ़ु जदि किसी भी कंडीशन माने हिसाब करूँ जदि किसी भी गोटे भी कंडीशन आपंकर से होनी माने को फुलफिल करूनी ताला आप रिजेक्शन निश्चय हेबे तेणु से जिनस से बाटर लगेवा समय खर्च करने अपेक्षा से जिनसा को आम अप्लाई आदौ करें आज जो पिलाटा प्रथम रू जे सर्टिफिकेट अभाव आज कटी सर्टिफिकेट हेतु कम्प्लीसन हो नाला कटी तेणु से क्षेत्र में कौन हम ना से पिला परिश्रम कर 200 मार्क रखी मैंने परिश्रम न करी जड़े 200 मार्क रखिपर तेणु 200 पाखापाखि मार्क जदि रखी किंतु से पिलाटा कटुची ताहले केवल कहि जे रिजोल्यूशन जो न्यू मेरिट लिस्ट जिते भी आसो
जो स्टेट पिला कटे स्टेट्र बहुत पिला कटे कारण ये जो 20,000 पिला सिलेक्शन होती पाखापाखि कह 12,000 प्लस कैंडिडेट होती प्रिफरेन्स 1 हिसाब से और 6,200 कैंडिडेट होती स्टेट अनुसार तेणु से जो 6,000 प्लस कैंडिडेट 6,200 कैंडिडेट से भर पाखापाखि कह 5,000 कैंडिडेट कटिजे तेणु से कटिया भी दरकार निश्चित दरकार कहीं गाइडलाइन जहाँ अच्छी कारण काली आउ थे जब भी किए नुआ लिस्ट आसला आउ गोटे गाइडलाइन आउ गोटे कौन कहूँ सी भी केस करें गाइडलाइन ही फॉलो करवा ही मुख्य जिनस कह जदि गाइडलाइन जहाँ अच्छी सेटा को फॉलो करा दरकार कारण गाइडलाइन रे रहिले ही सेटा आगु को जिते भी पिला केस करेंगे कि जहाँ भी करेंगे कारण पिला निश्चय केस करेंगे एवं स्टेट सिलेक्शन जदि भी आगु प्रथम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है जो पिला स्टेट भाभी पकईते से जाते ओसेवा ऑफिस हाईकोर्ट को जाते जे आमको फोन कॉल कहल आज स्टेट सिलेक्शन हो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन किन करदेल स्टेट सिलेक्शन तो कहीदेल तेणु से जिनसा आम प्रथम माइंड सेट करा दरकार जे आमको गाइडलाइन कौन कहूँ तेणु आपण आज जो मैंने भी कटुंट जो मैंने भी एनआईओएस पिला हूँ कि जो मानकर आबसेंट अच्छा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कारण से बहुत पिला सर्टिफिकेट ही ना अप्लाई कर देछंती जने कुकुर नारे आडमिट कार्ड इश्यू भी करें भी पदक्षेप आगू नौ गाइडलाइन टाक संपूर्ण बुझिला पर पदक्षेप नि आज स्टेट पिला जाई केस करेंगे जे स्टेट पिला जाई चैलेंज करेंगे जो आमर पूर्व राय आसी किसी लाभ हेनी कौन परिवर्तन हेनी कारण ता बाद 2016 मसीह यही सामान्य गाइडलाइन की डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन बोलिकी राय अलरेडी आसी तेणु यहीटा को थोड़े चिंता करा दरकार जे आम गाइडलाइन गोटे पिला जदि 200 मार्क रखिदिया पिला तार कौन भी रूल भायोलेसन होउजी ताहले सी कटुची किमिति ना गाइडलाइन जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है माने 200 कैंडिडेट कटि गोटे गोटे जिले में 200 कैंडिडेट पाई पिला आपंकर सब ठीक था किंतु डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है जो आप कटिजे तेणु सहीटा को थोड़े चिंता करूँ गाइडलाइन जहाँ कहूँ आम से अनुसार गले आगु को विरोध करके आ गए नुआ गाइडलाइन से जो भाया कर कौन भी रूल गोटे खिलाफ कर गाइडलाइन या आउ थे पिला केस करेंगे आउ थे पेंडिंग रहा थे चलो ये प्रोसेस आम पाखे रिजल्ट कौन अच्छी आउटपुट कौन आसपर तेणु रिजल्ट आग स्टेट सिलेक्शन थी सेटा को कमिटा को देखिले पिला जे एटा प्रकृत में गाइडलाइन स्टेट सिलेक्शन को कहूनी तेणु डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन को चेंज करने कोर्ट रे केस कले सरकार विरोध में बा ओसेवा विरोध में तापर माने कोर्ट देखिले से जिनसा जे एटा प्रकृत में गाइडलाइन धाटे भी कौटे स्टेट बोली लिखाई तेणु स्टेट मेरिट आधार केमती हम से रायटा देले तेणु यहाँ को आम स्टेट जो मैंने पाई को आक्सेप्ट से करना भूलटा को जो दिन आक्सेप्ट करेंगे आगू को जिते भी स्टेप पकड़े ताहले ठीक रे पड़ो आउ जदि भाविए जे हाँ एबे मु भूल कर स्टेप पे मत भूल दंड किसी न मिलू मु आम एटा करदेबू सेटा करदेबू सेटा किसी करें कारण आपड़ जहाँ भी किसी करेंगे एबे देखो ओसेवा कौन कहूँ ना मान्यवर कोर्ट तो आमको राय देते तेणु आम हिसाब से जोटा राय कोर्ट राय देते अनुसार आम कम करूँ किंतु पिला माने पूरा खुशी होगी अच्छा जे ओसेवा ये जीव हायर अथॉरिटी अरे सी 2016 मसीह जीति सामान्य रिजोल्यूशन आज स्टेट किमिति करी जीति जीव तेणु वीडियो ये कंप्लीट रखुची मन दुख जदि करार अच्छी मन दुख करूँ कारण पूर्व भी पिला मन दुख कर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हो नाला से केस कर तेणु मन दुख कर कार दरकार नहीं गाइडलाइन जहाँ हो ठीक किए मन दुख कर कौन गाइडलाइन बदलवा दरकार नहीं कि किए खुशी पाइब कौन गाइडलाइन बदलवा दरकार नहीं जहाँ गाइडलाइन कहूँ फॉलो कर।